السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. کرم دین کو اللہ نے صرف 2 بیٹیوں سے نوازا تھا، کوثر اور شگفتہ. ثریا بیوی نے بیٹے کے لیے بڑی منتیں مرادیں کی تھیں، پر شگوں کے بعد اللہ نے جھولی نہ بھری، لہٰذا دونوں میاں بیوی بیٹیوں پہ ہی شاکر ہو گئے. دونوں بیٹیاں بے حد خوبصورت اور حسین تھیں. کوثر کی شادی اس کے 16 سال میں لگتے ہی ثریا بیوی نے کر ڈالی تھی، اور اب انہیں شگوں کی فکر تھی جو نوخیز جوانی میں 2 آتشہ ہوتی جا رہی تھی. ابھی صرف 16واں سال تھا اسے، پر جوانی اور حسن کی اٹھان غضب کی تھی. کرم دین ایک چھوٹے سے کارخانے میں قالین بننے کا کام کرتا تھا. سارا دن قالین بنتے بنتے نہ صرف کمر اکڑ جاتی بلکہ گھٹنے بھی جیسے جڑ جاتے تھے. اوپر سے انہی دھاگوں کے باریک ریشے اور ذرات سانس کی نالی میں جا کر کھانسی کا سبب بنتے. کرم دین کو بھی شروع میں ہلکی کھانسی شروع ہوئی تھی، جس کا علاج اس نے محلے کے کمپاؤنڈر کی کھولی دکان سے دوائی لے کے کر لیا تھا، لیکن مناسب آرام اور خوراک اور درست علاج نہ ہونے کی وجہ سے کھانسی بگڑ چکی تھی. آج بھی کارخانے میں کھانستے ہوئے سارا دن بڑی مشکل سے گزارا تھا اور بے حد ہمت کر کے اپنا کام کرتا رہا تھا، کیونکہ وہ چھٹی نہیں کرنا چاہتا تھا. چھٹی کی صورت میں مختار بھائی جو اس کے چھوٹے سے کارخانے کا مالک تھا فوراً پیسے کاٹ لیتا اور ساتھ ہی کوثر کی شادی پر لیے گئے قرض کی رقم واپس لینے کا تقاضا کر ڈالتا. اس روز شگفتہ نے صبح صبح گھر کی صفائی کی اور پھر منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو گئی. اماں کے روبرو کھڑی ہوئی جو نلکے کے پاس بیٹھی برتن دھو رہی تھی. لے اماں، میں نے سارے کام کر لیے ہیں، اب میں خالہ رضیہ کے ہاں چلی جاؤں، ساتھ ببلو کو بھی لے جاؤں گی. شگوں نے جلدی جلدی اپنے پروگرام سے اماں کو آگاہ کیا. ثریا بھی آج کل اپنے مسئلوں میں الجھی ہوئی تھی، اس لیے بے دھیانی میں اس بات میں سر ہلا دیا. شگو جھٹ چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل گئی. ساتھ والے گھر کے سامنے سے ببلو کو آواز دی. ببلو بھی آواز سن کے فوراً باہر نکل آیا. ببلو، میرے ساتھ جمیلہ کے گھر تک جانا ہے، 2 روپے دوں گی، چلو گے؟ شگو نے خالہ رضیہ کے 6 سالہ بیٹے کو لالچ دیا. ببلو جھٹ تیار ہو گیا. اس قسم کی امداد شگو اکثر ہی ببلو کی کرتی رہتی تھی. دونوں ہم قدم ہو کر تیزی کے ساتھ جمیلہ کے گھر کی جانب بڑھنے لگے، جو کہ 2-3 گلیاں چھوڑ کر تھا. جمیلہ شگو کے بچپن کی دوست تھی، لیکن اب یہ حوالہ کافی نہیں تھا. اب جمیلہ کے ساتھ دوستی نبھانے کی اصل وجہ جمیلہ کا بھائی نوید تھا. نوید، جس کا خیال آتے ہی شگو کے جسم میں تناؤ سا آ گیا. دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی. اسے معلوم تھا آج جمعہ ہے اور جمعے کے روز نوید کو چھٹی ہوتی ہے، اور نوید خاص طور پہ اس کا انتظار کرتا ہے، اسے اسے بڑی جلدی تھی. جمیلہ کے گھر داخل ہوتے ہی اس نے بڑی دل جمعی سے چاچی کو سلام کیا. چاچی، جمیلہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی. اور تو آج ہاتھ سے کپڑے دھو رہی ہے، واشنگ مشین نہیں لگائی؟ شگو نے بیک وقت 2 سوال کرتے ہوئے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا. نوید اسے کہیں نظر نہ آیا. اب پتہ نہیں ناراض ہو کے باہر نکل نہ گیا ہو، اب اسے کیسے مناؤں گی؟ شگو کا دل گھبرایا. پتر، جمیلہ تو بھی نہانے گئی ہے، مشین خراب تھی، میں نے سوچا 2-4 سوٹ ہیں ہاتھ سے دھو لوں تو ادھر بیٹھ گئی. جمیلہ کی ماں نے ایک قمیض پہ صابن رگڑتے ہوئے جواب دیا اور ساتھ ہی شگو کو سر کے اشارے سے پاس پڑی چارپائی پہ بیٹھنے کو کہا. نہیں چاچی، یہاں تو دھوپ ہے، میں اندر کمرے میں جا کر بیٹھتی ہوں. شگو نفی میں سر ہلاتے ہوئے فوراً سامنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. موسم تو اب بدل رہا ہے، اب تو یہ دھوپ اچھی لگتی ہے، پر ان کڑیوں کو تو اپنے رنگ کے کالے ہونے کی فکر ہوتی ہے جو اتنی اچھی دھوپ کا سواد بھی نہیں لیتی. جمیلہ کی ماں نے کپڑے دھوتے ہوئے خود کلامی کی. شگو جھٹ کمرے میں چلی آئی اور ایک کرسی پر ٹک گئی. کمرے کی نیم تاریکی میں سے کچھ سکون محسوس ہوا، پر دل بے چین سا تھا. یا اللہ، نوید گھر پہ ہی ہو. شگو نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے دعا کی. میں نے کہا جی، سلام محبت. کچھ ہی دیر میں نوید دونوں کمروں کے درمیان کی دیوار میں لگے دروازے میں آن کھڑا ہوا اور بڑی ہی محبت پاش نظر سے دیکھتے ہوئے جذبات سے بوجھل لہجے میں بولا. شگو، تو کتنی ہنسی ہے، بالکل کسی لچکیلی شاخ جیسی جسے ہاتھ بڑھا کے تھوڑا سا جھٹکا دوں
تو سارے پھول میری جھولی میں آن گریں گے۔ پر تو ہے بڑی بے درد، کتنا انتظار کرواتی ہے۔ مجھے اب تیرا تصور بڑا تڑپانے لگا ہے۔ بس وہ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کے آنا ہوتا ہے، انتظار تو مجھے بھی بہت برا لگتا ہے۔ شگو نے نظریں جھکائے دھیمے سے جواب دیا، تیرے ہاتھ بڑے خوبصورت ہیں، جی چاہتا ہے بڑھ کے چوم لوں۔ نوید یہ کہتا ہوا 2 قدم آگے بڑھا۔ شگو اپنی جگہ پر سمٹی، دل کی تال بے ہنگم ہو گئی۔ پر جمیلہ کے باہر سے بولنے پر اندر آنے کی وجہ سے نوید فوراً دوسرے کمرے میں چلا گیا اور شگو کو اس وقت جمیلہ پر بے تحاشا غصہ آیا۔ ہائے شگو، مجھے تیرا بڑا انتظار تھا، تجھے رجو کے متعلق کچھ بتانا تھا۔ جمیلہ شگو کے ساتھ مل کر اس کے پاس ہی پڑی دوسری کرسی پہ ٹک گئی۔ رجو اس کی بڑی بہن رخسانہ کی نند تھی۔ اچھا بتانا، پر پہلے مجھے اپنی شیشوں والی قمیض دکھا دو، میں نے ویسی بنانی ہے۔ شگو نے بدمزہ سی ہو کر جمیلہ سے کہا، لے اتنی جلدی جا رہی ہے، بیٹھ نا، کتنی باتیں کرنی ہے۔ اور تو قمیض دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جمیلہ نے شگو کا ہاتھ پکڑ کے بٹھانا چاہا، جو قمیض بے دلی سے دیکھ کے اٹھ گئی۔ اب جمیلہ کی موجودگی میں مزید نوید سے ملاقات کا امکان نہ تھا۔ نہیں، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں پھر کسی دن آؤں گی۔ بہن کا اتنا خیال ہے، 2 گھڑی پاس نہیں بیٹھ سکتا تھا، بھلے باتیں نہ کرتا، پھر یوں ہی دیکھتا تو رہتا۔ آئندہ ایسا کرے گا تو ناراض ہو کر چلی جاؤں گی۔ جب تک ہاتھ جوڑ کے نہیں منائے گا نا، میں نہیں مانوں گی۔ دل ہی دل میں نوید سے لڑتی جھگڑتی وہ گھر میں داخل ہوئی۔ ببلو بھی اس کے ساتھ ہی اندر چلا آیا، پر آگے مختار چاچے کو بیٹھا دیکھ کر واپس مڑ گیا، کیونکہ اسے مختار چاچے سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ آیا ہوگا لالچی اپنے پیسے مانگنے، شگو دل ہی دل میں بڑبڑائی اور مختار چاچے کو سلام کرتے ہوئے سیدھی کمرے میں چلی آئی۔ موڈ ابھی تک بگڑا ہوا تھا۔ نی شگو، اپنے چاچے کے لیے چائے بنا لے، اماں نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ وہ بیزاری کے ساتھ واپس مڑی اور باورچی خانے میں آ کر چائے بنانے لگی۔ مختار کرسی پر اس انداز میں بیٹھا تھا کہ باورچی خانے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک بار بار اسے متوجہ کر رہی تھی۔ گھنگرو والا پراندہ علیحدہ اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اور پھر آج تو شگو نے پچھلی عید کا لال رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، جو اس کی سفید گلابی رنگت پہ خوب اٹھ رہا تھا، اور اس بات کا اس کے دل کو ملال تھا، جس کے لیے اتنا تیار ہو کے گئی تھی، اسے ڈھنگ سے تعریف کرنے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ لے چاچے، چائے پی لے۔ شگو نے کھنکتی چوڑیوں کے ساتھ مختار کو چائے کا کپ تھمایا۔ مختار نے شگو کی جانب دیکھا، آنکھوں میں لگی کاجل کی دھاڑ مختار کے دل پر ایک لکیر سی کھینچ گئی۔ شگو چائے دے کر اندر کمرے میں آ کر آڑی ترچھی چارپائی پہ لیٹ گئی اور آنکھیں موندے موندے نوید کے ساتھ سہانے سپنے دیکھنے لگی۔ اس وقت اس کے ہونٹوں پہ بڑی دلاویز مسکان تھی۔ نوید کا گھرانہ اس محلے میں معاشی طور پہ سب سے بہتر حالت میں تھا۔ نوید کا ابا ایک سرکاری اسکول میں چپراسی تھا اور اب ریٹائر ہونے کے بعد ریٹائرمنٹ کے پیسوں سے محلے میں پرچون کی دکان ڈال رکھی تھی، جو کاروباری حساب سے بہت اچھی جا رہی تھی۔ نوید اپنے باپ کے ساتھ مل کر دکان پہ ہی کام کرتا تھا۔ اس گھرانے کی خوشحالی کی بڑی وجہ شاید چھوٹا کنبہ تھا۔ نوید کی بڑی بہن کی شادی سیالکوٹ میں اپنی پھپھو کے گھر ہو چکی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے، پھر نوید اور اس کے بعد جمیلہ، لہٰذا آمدنی تھوڑے افراد میں صحیح طرح سے استعمال ہو رہی تھی۔ نوید اس محلے کا سب سے سونا اور گبھرو جوان تھا۔ یہ صرف شگو کا خیال نہ تھا، بلکہ اس کی تمام سہیلیاں نوید کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی تھیں۔ لیکن لاٹری شگو کے نام نکلی اور اس نے ابھی تک کسی کو بھی اس بات کی ہوا تک نہ لگنے دی تھی۔ شگو نے ہمیشہ کسی امیر زادے کا خواب دیکھا تھا۔ غربت اور مجبوری کی اس زندگی سے اسے نفرت تھی۔ چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے ترستے رہو، وہ تمام زندگی ایسے گزارنے پر تیار نہ تھی۔ وہ منتظر تھی اپنے خوابوں کے شہزادے کی، جو اسے اس مشکل اور غربت بھری زندگی سے نکال کر دور لے جائے گا۔ نوید بہت امیر زادہ نہ سہی، پر اوروں سے بہت بہتر حالت میں تھا، اور سب سے بڑی بات اس پہ جان دیتا تھا۔ اسے یاد آیا جب نوید نے پہلی بار اس سے اظہار محبت کیا تھا، تب وہ جمیلہ کو آوازیں دیتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ نوید کے ذریعے یہ جان کر وہ واپس پلٹنے لگی تھی کہ جمیلہ اور اس کی ماں رخسانہ کے ہاں گئی ہوئی ہیں۔ شگو،
नवीद की आवाज़ आने पे वो पलटी। हाँ जी शगो, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। दरअसल तू मेरे ख्वाबों की शहजादी है और मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है। नवीद ने एकदम ही शगो से दिल की बात कह डाली और वो वहीं थम के रह गई। मुंह जोर जवानी की बहार की आमद थी। उस पर दिल की धड़कन तेज हो गई, कानों में साई साई होने लगी। शगो तू बता ना मुझे, क्या मैं तुझे अच्छा लगता हूँ? देख तेरी हाँ मुझे जिंदगी दे देगी, वरना तेरे बगैर जिंदगी तन्हा गुजार दूंगा। पर तेरे अलावा नवीद की जिंदगी में कोई और शामिल ना होगी। दीवाना कर डाला है तूने मुझे शगो, बता ना मैं तुझे कैसा लगता हूँ? नवीद ने इसरार करके पूछा। शगो की तो जैसे जुबान ही गंग होकर रह गई। उसे क्या खबर थी कि जिस शहजादे के वो सिर्फ ख्वाब देखती रही वो आज हकीकत का रूप धारे उसके सामने खड़ा है। बेख्तियार ही उसका सर असबात में हिल गया और इकरार करने के बाद वो रुकी नहीं। ठहर जाती तो शायद मोम की तरह पिघल जाती, लिहाजा फौरन वहां से भाग निकली। वो मारा, नवीद की पीछे से खुशी से भरपूर आवाज़ सुनाई दी, जिसकी गूंज कितने दिनों तक उसके कानों में रस घोलती रही। वो अपने ख्यालात और तसव्वुरात में इतना खोई हुई थी कि उसे अंदाज़ा ही ना हो पाया कि बाहर वो तीनों क्या बातें कर रहे हैं। शग्गो, ओ शग्गो, रात को कुछ नहीं खाना, हांडी रोटी का कुछ कर ले। आखिर तुझे कब अकल आएगी? इतनी बड़ी हो गई है पर अकल बिल्कुल नहीं, ना कोई एहसास जिम्मेदारी। अम्मा को जैसे एकदम ही वो बड़ी बड़ी नजर आने लगी। उसकी पुकार में डपट नहीं बल्कि लहजा कुछ सोचता हुआ सा था। मुख्तार चाचा चला गया, पैसे मांगने आया होगा, बुढ़ा कंजूस। चाय का खाली कप कुर्सी के पास से उठाते हुए उसने अम्मा से पूछा। अच्छा ज्यादा बकवास ना किया कर। अम्मा ने एकदम उसे डांट कर रख दिया तो वो बुरे बुरे मुंह बनाती नलके की तरफ चली गई। उस रात भी सुहाने ख्वाब देखती जाने वो कब नींद की वादी में उतर गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि शदीद प्यास से उसकी आंख खुल गई। कुछ देर वो सुस्ती से लेटी रही और यूं ही दाएं जानिब देखा तो अम्मा की चारपाई खाली थी। बाहर से अम्मा और अब्बा के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। वो धीरे से उठी और पानी पीने के लिए बाहर कमरे से निकलने लगी। जब अपना नाम सुनकर वो दरवाजे की ओट में हो गई। अब्बा कह रहा था शग्गो की माँ मुख्तार अपनी शग्गो से उम्र में दुगना है, रंडवा भी है। भला उसका और शग्गो का क्या जोड़। हाय हाय कोसर के अब्बा, क्या हो गया है तुझे? मर्द की उम्र कौन देखता है? मर्द की तो कमाई देखी जाती है, जो भले उसकी उम्र से कई गुना बड़ी हो। और रही बात रणवे की तो उसने कौन सा अपनी बीवी को खुद मारा था? बेचारी करमो जली दाई ने उसका केस बिगाड़ दिया था, ना खुद बच सकी ना बच्चा। अम्मा ने कदरे बिगड़ते हुए कहा। न जाने कब से दोनों के दरमियान इस मौजू पे बहस चल रही थी। पर बस तू रहने दे इस परवर को, अपनी शग्गो राज करेगी। मुख्तार का कौन सा बड़ा कुंबा है? माँ बाप कब के मर खप गए, बहन भाई अपने अपने घरों के हो गए। अपनी शग्गो को ससुराल का कोई भी झंझट ना होगा। अम्मा ने अब्बे की बात काटते हुए कहा और फिर से सिलसिला कलाम जोड़ा। और फिर ये भी तो देख कोसर के अब्बा, वो इस रिश्ते के बदले हमारा कर्ज भी माफ़ कर देगा। बल्कि वो तो ये भी कह रहा था कि वो तुझे कारखाने से छुट्टी दे देगा, पर महीने की पेंशन देता रहेगा। भला कारखाने से भी कभी कोई मजदूर रिटायर हुआ है जो उसे पेंशन मिले? जब तक जिंदगी उसे रिटायर ना करे, कारखाने के मालिक कब छोड़ते हैं? ये सब तो हमें शग्गो की वजह से कह रहा था। अब्बा ने ठंडी आह भरते हुए समझाने वाले अंदाज में कहा। जानती हूँ इतनी कम अक्ल नहीं, पर इस बात में भी तो अपना ही भला है। हमारा कौन सा पुत्र है जो हमें बुढ़ापे में बिठा के खिलाएगा? बेटियां ब्याही गई तो भी हांडी रोटी के लिए तुझे खुद ही खपना पड़ेगा, और अब तेरी हड्डियों में इतना दम रहा ही कब? ऊपर से डॉक्टर भी आराम का कह रहा है। इन सब बातों को सोचूं तो मुझे ये रिश्ता अल्लाह की मदद लगता है। उस पालनहार ने हमारी गैब से मदद की है, अपनी शग्गो के नसीब खोल दिए। बस कल जब मुख्तार जवाब लेने आएगा तो हाँ में ही जवाब देना, अम्मा ने करमदीन को समझाते हुए कहा। और अब्बे की खामोशी नीम रजामंदी की दलील लग रही थी। अंदर कमरे में जैसे शग्गो के पूरे जिस्म में आग लगी हुई थी। बस नहीं चल रहा था कि वो अम्मा की खुदगर्जी पर खूब चीखे, रोए और बाहर जाकर दोनों को साफ साफ इनकार कर दे। साथ ही उसे बुढ़े मोटे काले मुख्तार चाचे पे गुस्सा आ रहा था। बुढ़ा खुसट,
कंजूस, शक्ल देखे अपनी, कब्र में टांगे लटकाए बैठा है और मनहूस को शादी के चोंचले सूझ रहे हैं। मुझे मालूम होता कि वो काला भैंसा इस नज़र से मुझे देख रहा है तो कभी उसे अपनी सूरत ना दिखाती। थूकती हूँ मैं ऐसे रिश्ते पे। शगो दिल ही दिल में खोल रही थी। वो दोबारा चारपाई पे आके लेट गई। प्यास तो कब की मर चुकी थी। वाह अम्मा, तू कितनी खुदगर्ज है, अपना बुढ़ापा संवारने के लिए मेरी कुर्बानी दे रही है। तो कैसी माँ है जिसे अपनी बेटी के जज्बात का ख्याल ही नहीं। अपनी फिक्र पड़ी है, पैसे के लालच ने औलाद की मोहब्बत भुला दी। शगो ने दुखी दिल के साथ सोचा। तो फिर ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। अगर तुझे मेरा ख्याल नहीं तो मुझे भी नहीं। गुर्बत की जहन्नुम से निकल के मैं दूसरी अजाब भरी जिंदगी कभी नहीं गुजारूंगी। जानती हूँ मेरे इनकार से तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबरदस्ती ब्याह दोगे मुझे उस बुढ़े के साथ। मैं कल ही नवीद की तरफ जाऊंगी। उसे किसी न किसी तरह सारी बात बताऊंगी। वो जैसा कहेगा वैसा ही करूंगी। वो भला ये सब कहाँ बर्दाश्त करेगा। अगर हमें भाग के शादी करना पड़ी ना तो ये भी कर गुजरेंगे, लेकिन मैं नवीद की मोहब्बत छोड़कर इस मुख्तारे से ब्याह हरगिज नहीं करूंगी, कम अज कम जीते जी तो नहीं। शगो ने बेचैनी से करवट लेते हुए सोचा। अगर वो मुझे कल घर ना मिला तो। शगो ने बेचैनी से करवट लेते हुए सोचा, अगर वो मुझे घर ना मिला कल तो। शगो को एक वहम ने सताया। घर पे ना मिला ना तो स्टोर पे जाके मिल लूंगी और फिर जैसा वो कहेगा वैसा ही करूंगी। और एक दिन रात के किसी पहर ये दहलीज पार कर जाऊंगी। यहाँ इन खुदगर्ज माँ बाप के दरमियान रहकर अब मैं क्या करूंगी। मैं अपने नवीद के साथ अपनी अलग दुनिया बसाऊंगी और अपनी जिंदगी की मर्जी जीऊंगी। इस किस्म की सोचें सोचती आखिरकार नींद ने उसे सुला दिया। अगली सुबह हस्बेहाल उसकी आंख अम्मा की आवाज से खुली। शग्गो, मनहूस उठ जा। ए लड़की, कोई अक्ल कर, इतना दिन चढ़ आया है और तेरी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। जरा ख्याल नहीं तुझे कि बीमार बाप को नाश्ता बना कर देना है। बस हर वक्त नहूसत फैलाती रहेगी सो सो कर। अगले घर जाकर तो तू मेरी नाक ही कटवाएगी शग्गो। अरे ओ शग्गो। अम्मा की बुड़बुड़ाहट जारी थी और साथ में शग्गो को आवाजें भी दिए जा रही थी। क्या क़यामत आ गई है अम्मा, उठ गई हूँ, बस कर, अब तुझे मेरे में बुराई ढूंढने के अलावा कोई काम नहीं। वो एकदम चारपाई से उठी और कमरे के दरवाजे में आकर चिल्ला पड़ी। दिल में तो रात ही से धुआं भरा था। अम्मा जो नलके के पास बैठी रात के बर्तन धो रही थी, उसकी बात का करारा सा जवाब देने ही लगी थी कि करमदीन को खांसी का दौरा पड़ गया। जल्दी से बर्तन धोना छोड़कर उठकर करमदीन की कमर सहलाने लगी। उसने ये सब बहुत बेजारी से देखा और जूती घसीटती हुई गुस्लखाने की जानिब बढ़ गई। नहीं रहूंगी इस मुसीबत खाने में। दिल ने एक बार फिर उसने पक्का फैसला दोहराया। सुबह से ही उसके दिल को जैसे पड़ लगे हुए थे, जो जल्दी जल्दी से नवीद की जानिब उड़ जाना चाहता था। जैसे तैसे उसने घर के काम निपटाए और अम्मा के पास आन खड़ी हुई। अम्मा, मुझे जमीला की तरफ जाना है, उसने आम से लहजे में कहा। ना, तुझे और कोई काम नहीं दुनिया में, बस हर वक्त जमीला का घर फेरे लगाए रखती हो। अब बड़ी हो गई हो, यूं हर दूसरे तीसरे दिन मुंह उठाकर उसके घर चल पड़ती हो। मुझे ये सब पसंद नहीं। आराम से घर बैठ, कहीं नहीं जा रही, समझी। अम्मा शग्गो को डांट कर फिर सब्जी बनाने में मसरूफ हो गई। अम्मा, एक दफ़ा जाने देना, फिर नहीं जाऊंगी। वो कल जो उससे कमीज़ लेने गई थी वो जमीला ने किसी और को दे रखी थी। कह रही थी आज ज़रूर मंगवा लेगी। बस कमीज़ लेके फ़ौरन आ जाऊंगी, जाने दो ना। शग्गो ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। वो हर हाल में आज नवीद से मिलना चाहती थी। बबलू को भेज दे, वो ले आएगा। वैसे भी शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनके चाय पानी का कुछ इंतज़ाम करना है। घर की सफाई भी अच्छी तरह से करनी है। ये सफाई तो तूने कम की है और जान ज़्यादा छुड़ाई है, अम्मा ने मसरूफियत भरे अंदाज में जवाब दिया। मेहमानों का जिक्र सुनकर शग्गो को जैसे पतंगे लग गए। जहर न मिला दो शाम को चाय में, उसने दिल में सोचा और एक बार फिर मिन्नत भरे अंदाज में बोली। पर अम्मा, मुझे जमीला से शीशा लगाना भी तो सीखना है। वो बबलू तो मुझे नहीं सिखा सकता। मैं बस 5 मिनट में आ जाऊंगी और जो तू कहेगी वो सारे काम करूंगी। बस अभी जाने दे। पर शग्गो, जाने दे उसे, कोसर की अम्मा। अब्बा जो सहन में बिछी चारपाई पे लेटा हुआ था, दोनों माँ बेटी की बातें सुन रहा था। सुरैया बीबी की बात काट कर बोला।
जा बेटी, जल्दी आ जाना और बबलू को साथ लेकर जाना। अब्बा के इजाज़त देने पे उसने झटपट चादर ओढ़ी और बाहर के दरवाजे में झांक कर गली में देखा। शुक्र है बबलू बाहर गली में ही अखरोट खेलता नजर आ गया। उसे हाथ के इशारे से पास बुलाया, 2 रुपए का लालच दिया और अपने साथ ले जाकर जमीला के घर की जानिब चल दी। या अल्लाह, नवीद घर पे ही हो और मुझे उससे बात करने का मौका मिल जाए। अल्लाह करे दोनों माँ बेटी घर पे ना हो। सारे रास्ते उसके लबों पे यही दुआ थी। बहुत तेजी से सफ़र करती हुई वो जमीला के घर पहुंच गई। बाहर का दरवाज़ा खुला था। बबलू गली में खेलते बच्चों की जानिब दौड़ गया। वो खामोशी से घर में दाखिल हुई। घर पर जैसे कोई नहीं था। जमीला या चाची घर पे होती तो यही कहीं नजर आ जाती। कुदरत उसके साथ थी। वो दबे पांव नवीद के कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे के करीब उसे अंदर से बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। कमरे में दाखिल होने ही लगी थी कि अपना नाम अंदर से सुन के ठठक गई। यार नवीद, ये शग्गो चंबेली का क्या बनेगा? तू तो अपना दिल सियालकोट की रजो को दे बैठा है और आज उसी के रिश्ते की बात करने चाची और जमीला सियालकोट गई हैं, है ना? हाँ, शग्गो चंबेली नाम अच्छा रखा है तूने। नवीद की चहकती आवाज़ सुनाई दी। कुछ तवक्कुफ के बाद वो बोला, ओह यार, उसका क्या बनना है? तूने मुझसे 500 की शर्त लगाई कि इस अथरी घोड़ी को लगाम डालूं, क्योंकि तेरा चारा डालने पर तो वो तेरे करीब नहीं फटकी। सो मैंने शर्त जीत ली। वो मेरी मोहब्बत के जाल में मक्खी की तरह फंस चुकी है। बस अब तो उसका शिकार करके मज़े लेने हैं। नवीद ने कमीनगी से कहा, वो तो मैं तुझे दे देता हूँ, पर शगो के साथ अच्छा नहीं हुआ और आगे जो तू करेगा वो भी मैं जानता हूँ। पर खैर, हो सकता है सेकंड हैंड होकर अब वो हमें मुंह लगा ही ले। उसके दोस्त ने भी उसी कमीनगी भरी आवाज़ में जवाब दिया, वो भी तो अपनी औकात भूल के मुझसे दिल लगा बैठी है। लेकर क्या आएगी वो जहेज में? खाली अपनी 4 दिन की जवानी, जिसे एक दफ़ा चख लिया तो बासी हो गई। रजो कम से कम अपने लेवल की तो है ना, इकलौती बहन है वो रियाज भाई की, तो जहेज भी खूब लाएगी और सोनी भी शग्गो से कहीं ज़्यादा। ऊपर से शर्मीली, हयादार, हर एक के सामने यूं दिल नहीं दे बैठती। अब तो मैं शग्गो से मोहब्बत का खेल खेल के बोर हो गया हूँ। बस मौके की तलाश में हूँ, जब अकेले मिले फ़ायदा उठाकर टाटा बाय बाय। नवीद ने खबासत भरा कहका लगाया और साथ ही उसके दोस्त की हंसी भी शामिल हो गई। उफ खुदाया, इतनी तजलील, इतना बड़ा धोखा। बाहर साकित खड़े से यूं लगा जैसे ये कमरे की दीवारें उसके सर पे आन गिरी हों, आंखों में किसी ने मिर्ची डाल दी हो। इतनी शदीद जलन और सांस जैसे लेना दुश्वार हो रहा था। दिल अपनी खुशफहमी पे धड़कना जैसे भूल गया। शग्गो वो मुश्किल अपने वजूद को घसीटते जमीला के घर से निकली। वो उन दोनों के खतरनाक इरादों के बारे में जान कर एक पल भी वहाँ नहीं रुकना चाहती थी। वो अंदर से खौफजदा हो चुकी थी। उसे बबलू को आवाज़ देने का भी होश ना रहा। ज़मीन व आसमान गर्दिश करते हुए महसूस हुए। वजूद हवा में मुअल्लक होकर चल रहा था। आंखों के आगे धुंध छाई हुई थी। अथरी घोड़ी को लगाम, 500 की शर्त, सेकंड हैंड। दिमाग पर इन जुमलों की बाज गिश्त हो रही थी। उसे नहीं मालूम वो किस तरह घर पहुंची। अम्मा ने उसे देख कर ना जाने क्या कहा। कान तो बस साएं साएं किए जा रहे थे। वो सीधी अपने कमरे में चली आई और चारपाई पे यूं ढह गई जैसे उसके वजूद ने सदियों का सफ़र तय किया हो। अंग अंग में थकन बस गई थी। वो निढाल थी, बेहाल थी। उसका जी चाह रहा था वो बैन करे, रोए, नवीद को खूब बद्दुआएं दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। न जाने वो कब तक यूं ही पड़ी रहती कि अम्मा ने दरवाजे में खड़े होकर उसे आवाज़ दी, शग्गो, सुन नहीं रही? कब से तुझे बाहर से आवाज़ें दे रही हूँ। घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, उठ जा, चाय पानी का इंतज़ाम कर ले। अम्मा को किसी काम की जल्दी थी। वो उसका जवाब लिए बगैर वापस पलट गई। वो जो अभी तक साकत बेजान सी होकर पड़ी थी, एकदम उठकर बैठ गई, जिसमें जैसे बिजली सी कौन गई। हाँ, उसने लंबा सांस खारिज किया। मुझे मेहमानों के लिए चाय पानी का इंतज़ाम करना है, मुझे मंजूर है। अपनी खुदगर्जी में मैं क्या करने जा रही थी? कितनी बेहिस हो गई थी। बूढ़े माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल ना आया। एक पल को भी ना सोचा कि रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर घर छोड़ने वाली लड़कियों के घर सुबह हमेशा मुंह छुपा के दाखिल होती है। और जब अम्मा अब्बा को मेरे करतूत का पता चलता तो अब्बा बेचारा तो मर ही जाता और अम्मा तो लुट जाती अगर मैं उसकी तरबियत पे कालक मल के भाग जाती। या अल्लाह, तेरा शुक्र है
तूने मुझे जलील होने से बचा लिया, वरना वो कमीना नवीद अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। शग्गो ये सोच के ही कांप सी गई। गरीब के सपने भी गरीब ही होने चाहिए। अपने माहौल से फरार जिंदगी को सुख नहीं देता। लानत है शग्गो तुझ पर। अगर अम्मा अब्बा को मेरी सूरत में बुढ़ापे का सहारा मिल रहा है और उनकी मुश्किलें खत्म हो रही हैं, तो मुझे उस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए। खुद गर्ज वो नहीं बल्कि मैं हो गई थी। शग्गो ने खुद को लताड़ा। नी शग्गो, सुन रही है तू कि नहीं? अम्मा ने बावर्ची खाने से आवाज दी। आ रही हूँ अम्मा। वो जल्दी से बावर्ची खाने में जाने के लिए उठ खड़ी हुई। यह रिश्ता अब उसे दिलो जान से कबूल था। जिस रोज नवीद उसकी शादी की खबर सुनेगा, वो ना सिर्फ जीती हुई शर्त हार जाएगा, बल्कि ये बात उसे डूब मरने के लिए काफ़ी होगी कि मैंने उस पे मुख्तार को फौकियत दी। दिल को ये सोचकर अजीब सा सुकून मिला। पर ये क्या? आँख से एक आंसू निकलकर उसके गाल पे फैल गया था। दिल ने मोहब्बत में चोट खाई थी। दर्द तो लाजमी था, और दिल का दर्द आंसू की सूरत में ही जाहिर हो सकता है। दिल को हार हुई थी, और दिल की इस हार से शग्गो ने इतना जान लिया था कि अपने माहौल से मुतमईन रहना और मुसीबतों के साथ शुक्र के साथ जीना ही खुशहाल ज़िंदगी है। और जो भी अपनी ज़िंदगी से फरार चाहता है, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखता है, वो यूं ही बहुत बड़ी बड़ी ठोकरें खाता है। वो तो फिर भी बाल बाल बच गई थी। लिहाजा बावर्ची खाने की जानिब जाते हुए उसके कदमों में मजबूती और चाल में सुकून के साथ साथ दिल में इत्मीनान था कि वो इज्जत से ब्याही जा रही थी, वो भी नवीद से 1000 गुना अमीर आदमी से। और रात की तारीकी में अपने माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकालने का मुंह काला करके घर से भागने का उसका इरादा अल्लाह ने खाक में मिला दिया था। बेशक अल्लाह अपने बंदे को जिस हाल में रखता है वो बेहतरीन ही होता है। बंदे को भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो अब शग्गो ने सीख लिया था।